अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जून 2022 का पास्ट पेपर, और अब हम करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 4। तो मैं क्वेश्चन 4 जैसे हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया था, इट्स अ मिक्स ऑफ एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड सम बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें हम APV की भी इसमें रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन करनी है, और उसमें MIRR की भी डिस्कशन है, मॉडिफाइड IRR की। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, मुझे फॉलो करें, उसके बाद इसे मिलके हम सॉल्व करेंगे। इंफ्रा पावर लिमिटेड, अ कराची बेस्ड लिस्टेड कंपनी, is engaged in providing engineering, design, procurement and construction services. IP provides a complete design, procurement, construction and installation service for new coal and gas power plants. Gas powered plants it supplies to its customers in Pakistan and for some internationally. यानी ये पावर प्लांट्स की डिज़ाइन से लेके इंस्टॉलेशन तक की फुल सर्विसेज ऑफर करते हैं। Once a new power plant has been successfully engineered and installed, it is transferred to the customer, who may use it to generate power for their own use or use it to supply electricity to the National Electricity Transmission Grid of Pakistan, the National Grid. The board has recognized the importance of renewable energy and is considering diversifying into the design and supply of commercially viable solar power plants by investing first in one site to test the use of its solar power technology design. अब बोर्ड ये सोच रहा है कि हम ये थर्मल और कोल वाली साइड पे तो रहे हैं, हम ज़रा रिन्यूएबल वाली साइड पे भी आ जाएं जो कि फ्यूचर है, और हम एक टेस्ट साइट प्रिपेयर करें और अपनी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन को जो है उसको उस पर टेस्ट कर लें पहले। If investment appraisal for the new solar power plant is favorable, then this will provide the business case to construct the first new IP solar power farm. If after launch the solar technology used at this site proves to be feasible, then IP will use the design as a blueprint and design and deliver further solar power plant farms to its power plant customers as part of its strategy to increase renewable energy production and supply. वो कह रहे हैं अगर तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पॉजिटिव आएगा तो हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने का तजुर्बा सक्सेसफुल होगा तो नेचुरली फिर हम अपने कस्टमर्स को भी ऑफर करेंगे। Solar farm in Bahawalpur, the board is proposing to construct a new solar power plant which will be owned and managed by IP directly. ये अपना प्लांट लगा रहे हैं, ओन भी करेंगे, मैनेज भी इसे खुद करेंगे। The directors have assumed IP will sell all electricity generated to the national grid. और ये जो लगाएंगे इसकी बिजली कहाँ जाएगी? नेशनल ग्रिड को सप्लाई होगी। A suitable 100-acre site has been identified in Bahawalpur for the first solar power plant as the land is flat and a national grid connection is close by. लोकेशन उन्होंने ऐसी आइडेंटिफाई की है जो फ्लैट भी है, जहाँ पैनल्स आराम से इंस्टॉल हो सकें, और इट्स नियर बाय द नेशनल ग्रिड एज वेल, क्योंकि जैसे ही पावर जनरेट होगा तो उसको कनेक्ट भी करना है फिर नेशनल ग्रिड से जहाँ पे वो सप्लाई हो। The site is available for long-term rental at an annual cost of 42 million. And IP anticipates annual cost, यानी हर साल आप 42 मिलियन की रेंटल कॉस्ट भरेंगे। यहाँ रख दें बेटा, 42 million, and IP anticipates taking a 25-year lease if the directors of IP approve the pilot for the solar power plant design project. 42 मिलियन की पर एनएम की कॉस्ट होगी और 25 साल की आप लीज लेंगे। Site preparation costs are expected to be in the region of rupees 52 million. ये वन टाइम कॉस्ट होगी, साइट को प्रिपेयर करेंगे फॉर इंस्टॉलेशन। इन एडिशन केबलिंग एंड पाइलोन्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द ग्रिड वुड कॉस्ट रुपीज 60 मिलियन। ये कनेक्टिविटी कॉस्ट होगी जो कि आपको 60 मिलियन की और भरनी पड़ेगी। द पावर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बाय रेफरेंस टू मेगावाट्स। अ 1 megawatt system would require approximately 5 acres of panels at a total estimated cost of rupees 90 million inclusive of all installation cost. 1 मेगावाट के लिए आपको चाहिए कितनी? 5 एकड़ की जगह चाहिए आपको। तो अगर आप 100 एकड़ की ज़मीन लेते हैं तो डिवाइड बाय 5 करें, इसका मतलब है 20 मेगावाट तक का आप प्लांट वहाँ लगा सकते हैं। और 1 मेगावाट के लिए आपको चाहिए 90 मिलियन, तो 20 के लिए कितना चाहिए? 20 × 90 करें आप तो ये 1.8 बिलियन तकरीबन बन जाएगा, 1800 मिलियन।
मैं फिर रीड कर रहा हूँ, द पावर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बाय रेफरेंस टू मेगावाट्स। 1 मेगावाट सिस्टम वुड रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 5 एकड़ ऑफ पैनल, यानी उस 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए आपको 5 एकड़ की ज़मीन चाहिए। आप टोटल जो आपने लैंड आइडेंटिफाइड की है वो 100 एकड़ की है, तो डिवाइड बाय 5 करें तो आप 20 मेगावाट लगा सकते हैं। एंड एट अ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 90 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, 90 मिलियन की इसकी कॉस्ट है, डिवाइड बाय 25 किया तो 20 मेगावाट आया, 20 इंटू 90 करें तो 1800 मिलियन की आपकी यूँ कहिए कि सोलर पैनल्स की अलॉन्ग विथ इंस्टॉलेशन पूरी कॉस्ट आएगी। यूजफुल लाइफ ऑफ द पैनल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 25 ईयर्स विथ जीरो रेजिडुअल वैल्यू। 25 साल तक ये चलेगा, फिर रेजिडुअल वैल्यू नील होगी। वंस इंस्टॉल्ड देयर आर रूटीन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट व्हिच आर टिपिकली 1.9 मिलियन पर मेगावाट पर ईयर। तो 1.9 मिलियन जो है आपको पर मेगावाट उसकी कॉस्ट आएगी, जो कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सफाई वफाई की कॉस्ट होती है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल तो और कोई नहीं है, सोलर पावर्ड है, तो कोई स्टाफ रखेंगे आप, नेचुरली उसकी क्लीनिंग होगी एंड ऑल। तो ये जो कॉस्ट है 1.9 पर मेगावाट है। तो इसको भी अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या फिगर बनती है, 1.9 इंटू 20, मेरा ख्याल है 38 मिलियन बनेगी। Currently, electricity can be sold to national grid under a power purchase agreement at rupees 16 per kilowatt. A 1 megawatt system would generate 1000 kilowatt of electricity per day. Solar का जहाँ ये advantage है कि वो it doesn't require any continuous raw material cost. The disadvantage is that the solar energy is not available all the time. जितना टाइम सूरज होता है फिर वो सूरज के हिसाब से उसकी पावर प्रोडक्शन कम ज़्यादा होती रहती है। समर मंथ में ज़्यादा होती है नेचुरली, जब सनशाइन ज़्यादा होता है, विंटर मंथ्स में कम हो जाती है, और फिर थ्रू आउट द डे भी सोलर नहीं रहता। बहरहाल वो सारी कैलकुलेशन के बाद इन्होंने अपने हिसाब से निकाला है कि 1 मेगावाट जो है वो 1000 किलोवाट डेली जनरेट करेगा, और आप नेशनल ग्रिड को देंगे 16 रुपये पर किलोवाट पे। यानी हमारी जो लैंड है वो है 100 एकड़्स, ठीक है। 1 मेगावाट रिक्वायर्स व्हाट 5 एकड़्स। तो आप कितने मेगावाट लगाएंगे, आपकी जो कैपेसिटी होगी टोटल वो आप लगाएंगे इंस्टॉल, वो 100 डिवाइड बाय 5 इज 20 मेगावाट। अब 20 मेगावाट की जो टोटल कॉस्ट हम कह रहे थे, इनिशियल कॉस्ट आएगी 20 इंटू 90 मिलियन इज़ 1800 मिलियन रुपीज़। एक तो ये आपकी कॉस्टिंग हो गई। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है ये आपकी इनिशियल कॉस्ट हो गई, ठीक है ना जी। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी मैं लिख लेता हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम क्या होगी, वो होगी 1.9 मिलियन इंटू 20 करें तो रुपीज़ 38 मिलियन ये पर एनम होगी। अब जो आपका रेवेन्यू है वो रेवेन्यू के बारे में कह रहा है कि आपका 1 मेगावाट विल जनरेट 1000 किलोवाट पर डे, राइट। तो 20 मेगावाट पर एनम यानी 365 डेज में क्या जनरेट करेंगे, दे विल जनरेट 20 इंटू 1000 इंटू 365, इतने किलोवाट जनरेट करेंगे आप। तो 20 इंटू 1000 इंटू 365, तो आप जनरेट करेंगे 7.3 मिलियन किलोवाट पर एनम, ठीक है ना, पर एनम। और आप इसको मल्टीप्लाई करें 16 से तो एनुअल रेवेन्यू बन जाएगा आपका कितना, into 16 this will becomes 116.8 million rupees per annum। क्योंकि 1 मेगावाट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है करंटली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सोल्ड टू द नेशनल ग्रिड अंडर अ पावर परचेज एग्रीमेंट, PPA कहलाता है, एट ₹16 पर किलोवाट। ये ₹16 पर किलोवाट की तो आपकी जो है ₹16 पर किलोवाट का तो आपका रेट हो गया। अब कितने किलोवाट ऑफ साल में जनरेट करेंगे, 1 मेगावाट कह रहा है वो शुड जनरेट 1000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। 1 मेगावाट 1000 पर डे करेगा तो 20 मेगावाट कितना जनरेट करेंगे, 20 इंटू 1000
इंटू 365 डेज तो 7.3 मिलियन किलोवाट आप जनरेट करेंगे, 16 रुपये पर किलोवाट पे बेचेंगे तो एनुअल रेवेन्यू हो जाएगा 116.8 मिलियन, naturally which is quite low as compared to the initial cost. Anyway, जो हमें वर्किंग बताई है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं. The directors have assumed that IP will continue to pay corporate tax in Pakistan at 29%. Tax rate उसने बता दिया है 29% each year over the entire life. Corporate tax is assumed to be paid in the year in which profits are earned, यानी tax is payable in same year. फिर आ जाए next page पे. As this is a very long-term project, the directors of IP have advised for simplicity to assume a 10-year straight-line tax allowable depreciation is available on the investment in the panels. तो ये कह रहे हैं कि आपका जो depreciation होगी वो 10 years की straight line आपकी tax allowable depreciation होगी और is available on the investment in panels including any installation cost, यानी 90 million into 20 1800 million ये depreciable cost होगी आपकी. Site preparation and grid connectivity cost, site preparation cost थी हमारे पास कितनी 52 million और grid connectivity की cost थी 60 million. ये दोनों cost के लिए कह रहे हैं site preparation and grid connectivity cost do not qualify for tax allowable depreciation, यानी वो tax allowable cost नहीं है. IP plans to fund 50% of the initial investment cost through raising of new debt finance. Funding of the remaining 50 of the and the payment of any new debt arrangement fee will be funded from IP's existing cash reserves, which the company has ring-fenced for research and development expenditure. अब ये कह रहे हैं 50% जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी इस प्रोजेक्ट की वो तो आप भरेंगे कहाँ से, वो तो यू विल रेज बाय अपनी डेट फाइनेंस से, और जो रिमेनिंग 50 है और न सिर्फ 50 बल्कि जो डेट की अरेंजमेंट फ़ी भी है यानी इशू कॉस्ट भी है वो दोनों आप अपनी इक्विटी से कैश रिजर्व से भरेंगे. अर्ली डिस्कशंस विद द बैंक सजेस्ट दैट अ 25-year लोन विल बी अवेलेबल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. ये आपकी केडी हो गई प्री टैक्स विथ न्यू डेट अरेंजमेंट फ़ी एट 1.5% ऑफ द फंड बोरोड. अच्छा, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट होगी वो 1800 है, 50 है एक और एक 52 मिलियन और 60 मिलियन जो साइट प्रिपरेशन और वो कॉस्ट हैं वो भी हम आते हैं. तो जो इनिशियल कॉस्ट होगी उसका 50% डेट होगा, 50% इक्विटी फाइनेंस होगी और फिर इक्विटी डेट की हमें इशू कॉस्ट भी बताई गई हैं. अरेंजमेंट कॉस्ट ऑन न्यू डेट फाइनेंस आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पजेज, उस पर हमें टैक्स सेविंग भी होगी. मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या है, IP's करंट गियरिंग इज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 1:2. ठीक है. The directors of IP have identified a similar renewable energy company that has an asset beta of 1.6. इसका मतलब है आपकी जो existing gearing है वो बता दी गई, आपका existing जो बीटा एसेट है या बीटा इक्विटी है वो इररेलेवेंट है क्योंकि आप इस वक्त कोई रिन्यूएबल में काम नहीं कर रहे हैं, आप थर्मल में काम कर रहे हैं, कोल में कर रहे हैं, उसके रिस्क अलग हैं. रिन्यूएबल एक अलग एरिया है. तो उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट से एक सिमिलर मिलती जुलती कंपनी का उन्होंने एसेट बीटा बता दिया, तो इफेक्टिवली ये प्रोजेक्ट का बीटा हो गया, प्रोजेक्ट का अनगियर्ड या एसेट बीटा हो गया. द रिस्क फ्री रिटर्न इन पाकिस्तान इज 9%, दिस इज RF, एंड द मार्केट रिटर्न इज 15%. Evaluate the proposed solar power plant investment by calculating the adjusted present value APV and modified IRR MIRR. इग्नोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन छोड़ दें, ज़िंदगी और आसान कर दी. उन्होंने कहा APV निकालें और MIRR निकालें. APV के लिए हमें पता है क्या चाहिए, बेस केस NPV एंड देन फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स की PV. बेस केस NPV के लिए कैश फ्लोस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी of an ungeared company KEU, assuming the project is all equity financed. तो कैश फ्लोस तो चाहे हम NPV निकालें, IRR निकालें, मॉडिफाइड IRR निकालें, बेस केस NPV निकालें, कैश फ्लो सेम है. हम कैश फ्लोस कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम आते हैं किस पे, फिर हम APV निकालते हैं और APV निकालने के बाद फिर हम MIRR की तरफ जाएंगे. 16 मार्क्स की ये कैलकुलेशंस हैं. फिर पार्ट बी में उसने कहा है राइट अ रिपोर्ट टू द IP's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इवेल्युएट्स प्रपोज्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड, जिसमें आप इवेल्युएशन भी करें और रिपोर्ट में क्या डालें, एक्सप्लेनेशन ऑफ APV एंड MIRR, their respective advantages, disadvantages, and include a recommendation as to whether IP should proceed with a pilot for its new solar power plant design. Calculations are not required. यहाँ calculations required नहीं है, यहाँ सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट चाहिए. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये डिस्कशन पार्ट हो गया. उसी से रिलेटेड जो वर्किंग्स हम करेंगे एंड 16 और 66 ये 22 मार्क्स का क्वेश्चन है.
तो हम पहले पार्ट पे आते हैं 16 पे। इसकी कैलकुलेशंस कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी हम मिलके करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको करना ये चाहिए कि यहाँ अब आप पॉज करें। मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया है, 30-40% काम हो गया है। आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और सजेस्टेड सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को कंपेयर करें। इज दैट ओके? राइट। अब आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका पार्ट ए। हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज। मैं इन कैश फ्लोज को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ, एक ईयर 1 to 10 और एक 11 to 25। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम 10 साल तक टैक्स डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट की लाइफ स्ट्रेट लाइन 10 और प्रोजेक्ट की अपनी लाइफ 25 साल है और 10 साल तक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, राइट। तो हम यहाँ बनाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम टैक्स की बिल्कुल अलग वर्किंग कर लें और 1 to 25 ईयर्स के एक ही कैश फ्लो बना लें। ये भी काम हम कर सकते हैं कि टैक्स सेविंग और टैक्स डेप्रिसिएशन को सेपरेटली ट्रीट कर लें। हम उससे भी आपको वर्किंग करके दिखा देंगे। आपके लिए ये दोनों ऑप्शंस मौजूद है। अच्छा, अब मैं आता हूँ साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ ईज़ एंड टाइम। आप भी कर सकते हैं ये, लेकिन पूरा लिखना चाहें पूरा लिख लें और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट क्या है हमारे पास? वो है 52 मिलियन। फिर है कनेक्टिविटी कॉस्ट, वो कितनी है? 60 मिलियन। फिर है हमारे पास पैनल की कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की 1800। ये तीन हमारी इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट हैं। उसके बाद हमारी लीज कॉस्ट है। लीज कॉस्ट के बारे में ये नहीं कहा गया कि यानी रेंटल कॉस्ट है वो तो हर साल आएगी 42 मिलियन एट एन एनुअल कॉस्ट, और आईपी अगर करेगी तो 25 साल की ये लीज होगी और हर साल 42 आएगा। इन्फ्लेशन वैसे इग्नोर्ड है, रेवेन्यू में भी इग्नोर्ड है, कॉस्ट में भी इग्नोर्ड है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आएंगे? उसके बाद हमारा रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू हमारा हर साल है 116.8। फिर हमारी क्या है? रेंटल कॉस्ट है। रेंटल कॉस्ट वो कितनी है हमारी? 42, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी है मेंटेनेंस कॉस्ट। हर साल की एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो 38 मिलियन हमने कैलकुलेट की थी, राइट। उसके बाद आएगी यहाँ टैक्स डेप्रिसिएशन। ये कॉमन है, ये यहाँ भी 116.8, यहाँ भी 42, यहाँ भी 38। टैक्स डेप्रिसिएशन सिर्फ यहाँ आएगी। टैक्स डेप्रिसिएशन क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन हमारी इसकी होगी कितनी? 1800 डिवाइडेड बाई 10 इज 180 मिलियन पर एनम। क्योंकि रेजिजुअल वैल्यू ऐसे ही दिल है तो 180 की यहाँ आ गई टैक्स डेप्रिसिएशन। ये बन गया टैक्सेबल प्रॉफिट्स। लेट्स कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट। यहाँ आ जाएगा 143.2 और यहाँ आ जाएगा 36.8 का प्रॉफिट। फिर इस पे आएगा टैक्स। हम अज्यूम कर रहे हैं टैक्स सेविंग हमारी होगी एट द रेट ऑफ 29% एंड वी हैव सफिशिएंट अदर टैक्सेबल इनकम against which this tax loss will be set off, will generate tax saving of 41.53। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं, दैट्स फाइन। 41.5। यहाँ क्या फिगर आएगी हमारे पास? यहाँ आएगी 10.7। फिर यहाँ हम इसको ऐड बैक कर देंगे, राइट। और फिर बन जाएंगे हमारे नेट कैश फ्लोस। इन्वेस्टमेंट आ गई कितनी हमारी? टोटल 1912।
यहाँ क्या बन गया हमारा नेट कैश फ्लो 78.3 पॉजिटिव और यहाँ बन गया 26.1 पॉजिटिव। ये भी पर एनम है, ये फ्रॉम ईयर 1 to 10 और ये है फ्रॉम ईयर 11 to ईयर 25 26.1 राइट। ये बन गया नेट कैश फ्लोज। कैश फ्लोज इसके काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है राइट ये कैश फ्लोज इसके। अब जब हमें बेस केस एनपीवी निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केईयू। फॉर बेस केस एनपीवी व्हाट वी नीड इज केईयू। तो हम कैलकुलेट करते हैं केईयू। हमें चाहिए बेस केस एनपीवी के लिए केईयू। एपीवी के लिए चाहिए बेस केस एनपीवी। फिर हम करते हैं पीवी ऑफ फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स। बेस केस एनपीवी के लिए हमें चाहिए कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट इज केईयू। उसके लिए इसने हमें इनफ डेटा दिया है। प्रोजेक्ट का हमें बीटा एसेट गिवन है ऑफ द कंपनी विच इज सिमिलर टू द प्रोजेक्ट। तो इफेक्टिवली वो प्रोजेक्ट और उसके बिजनेस रिस्क सेम होंगे एंड दैट इज 1.6। ये बीटा एसेट भी है इफ द प्रोजेक्ट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, जो कि हम अज्यूम करते हैं इन केस ऑफ बेस केस एनपीवी। तो ये बीटा एसेट भी है और ये बीटा इक्विटी भी हो जाएगा प्रोजेक्ट का। आरएफ गिवन है हमें 9%, आरएम गिवन है हमें 15%। तो कैन वी नॉट फाइंड आउट व्हाट वी कॉल्ड केईयू इज आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा इक्विटी यू। So 9 plus 15 minus 9 into 1.6। तो KU के हिसाब से ये क्या बन गया हमारे KU 18.6%। दिस इज द डिस्काउंट रेट फॉर कैलकुलेटिंग बेस केस एनपीवी के लिए हम इससे डिस्काउंटिंग करेंगे। इसकी बेसिस पे हम निकालेंगे बेस केस एनपीवी। यहाँ तक आप पहुँचे, फिर मैं ये वर्किंग्स अभी इनको जो है मैं वर्किंग्स को रिमूव कर दूंगा और फिर यहाँ हम डिस्काउंटिंग वाला पार्ट वो वर्किंग्स यहाँ करेंगे। यहाँ तक पहुँच जाएं आप। अच्छा जी, तो अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं हिस्सा। यहाँ हम वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमें अपनी डिस्काउंटिंग को भी दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। पीवी ऑफ कैश फ्लोज, जो टाइम ज़ीरो है वो तो बहुत ही आसान हो गई वर्किंग। वो तो आपकी फिगर आ गई जनाब स्ट्रेट 1912। फिर आ गया ईयर 1 to ईयर 10। इनकी भी वर्किंग आसान है। हम एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 78.3 1 माइनस 1.186 पावर माइनस 10.186। ये कैलकुलेट करें क्या फिगर आ गई। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करें। क्योंकि ये हो रहे हैं 10 साल तक। (1.186) पे एक्स वाई माइनस 10 1 minus this divide by 0.186 into 78.3, this becomes 344.5 या 6। तो हम कर लें 344.5 लेट से। फिर आ गया ईयर 11 to 25। अब ये कितने कैश फ्लोज हैं? नंबर ऑफ कैश फ्लोज आर 15। 26.1 1 minus 1.186 पावर माइनस 15.186। लेकिन जब हम ये करेंगे तो हमारे पास पीवी आएगी, ये जो भी फिगर आएगी ये पीवी होगी एट ईयर 10 एंड। फिर हमें इसे मज़ीद डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी फॉर 10 ईयर्स, तब जाके हम पहुंचेंगे टाइम ज़ीरो की वैल्यू पे। तो हम करते हैं 1.186 एक्स वाई माइनस 15 .
1.186 power minus 15, 1 minus this, divide by 0.186 into 26.1, this is 129.5. तो ये 129.5। फिर क्या करना पड़ेगा, इसे फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा 1.186 पावर 10, तब जाके हम पहुंचेंगे कहाँ पे, टाइम ज़ीरो की वैल्यू पे। तो ये बन जाएगी 23.5। तो बेस केस एनपीवी इज मैसिव नेगेटिव। बेस केस एनपीवी क्या आ गई, अल्लाह, बन गई -1544। मैसिव नेगेटिव 1544 से आपकी एनपीवी नेगेटिव आ गई, बेस केस एनपीवी। इसमें अब आप प्रेजेंट वैल्यू डालेंगे ऑफ फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स, तो बेस केस एनपीवी तो सिग्निफिकेंटली आ गई आपकी नेगेटिव। यहाँ तक आप सब पहुँचें और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स को। अच्छा, इसकी दूसरी डिस्काउंटिंग का तरीका ये भी हो सकता था कि हम स्ट्रेट ये टैक्स को इग्नोर कर देते और फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स कैश फ्लोज को अलग कैलकुलेट करते। मैं वो भी आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम जाएंगे पीवी ऑफ फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स पे। आप यहाँ तक पहुँचे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम डिस्काउंटिंग डिफरेंटली करते तो भी हम पहुँचते यहीं पे ही। अच्छा जी, अगर हम चाहते तो हम इसकी डिस्काउंटिंग, ये मैं हिस्सा मिटा रहा हूँ, हम चाहते तो हम इसकी डिस्काउंटिंग यूँ भी कर सकते थे कि हम टैक्स के फैक्टर को इग्नोर कर देते। अगर हम टैक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दें तो फिर अगर हम टैक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दें तो हमारा हर साल का जो कैश फ्लो आएगा वो ये आएगा, इग्नोरिंग टैक्सेशन, इग्नोरिंग टैक्स फ्रॉम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, अभी टैक्स डेप्रीसिएशन, सॉरी, इग्नोरिंग टैक्स डेप्रीसिएशन। इग्नोरिंग टैक्स डेप्रीसिएशन को अगर हम यहाँ से इग्नोर करते तो हमारी एनुअल कैश फ्लो बनता, एनुअल कैश फ्लो जो हमारा बनता फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 25, वो एक ही बनता 26.1 मिलियन। फिर हम इसकी डिस्काउंटिंग करते तो हम कहते 26.1, 1 माइनस 1.186 पावर माइनस 25 और 0.186, तो क्या फिगर बनती, इंटू 26.1, ये बनती 138.4, राइट। फिर हम कहते हैं कि अच्छा, अब हम करते हैं पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन टैक्स डेप्रीसिएशन। तो टैक्स सेविंग ऑन टैक्स डेप्रीसिएशन कितनी है, 180 मिलियन पे इंटू 29% करें। 180 मिलियन की टैक्स डेप्रीसिएशन है, इस पे हर साल जो सेविंग हो रही है वो 52.2 मिलियन पर एनम की होगी। ये कब से कब तक होगी, ईयर 1 से ईयर 10। तो हम इसकी पीवी निकाल लें, इसकी पीवी फिर जब निकलेगी तो 52.2, 1 माइनस 1.186, लेकिन यहाँ पावर 10 आएगी क्योंकि ये सिर्फ 10 साल तक का फिनोमेना है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी डेप्रीसिएशन। अच्छा जी, तो अब आइए ये भी कर लेते हैं, 1.186 पावर माइनस 10, 1 minus this, divide by 0.186 into 52.2, this becomes 229.7, right। तो 229.7 और 138.2
229.6 कर देता हूँ मैं ऐसे, तो टोटल को राउंड ऑफ करें, 138.4 प्लस 229.6 ये मिलके बन गया 368 मिलियन, राइट, कैश इनफ्लोज की। इन दोनों को आप सम करें तो भी आप वहीं पे पहुंचेंगे, 344.5 प्लस 23.5 इज 368। तो हमारी कैश इनफ्लोज की पीवी वही आ गई, 368 यहाँ भी, 368 यहाँ भी। यहाँ हमने ये किया कि डेप्रीसिएशन पे जो टैक्स सेविंग है, यानी हमने टैक्स डेप्रीसिएशन को हटा दिया, तो फिर हमारे कैश इनफ्लोज फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 25 सेम हो गए 26.1, इनकी अलग डिस्काउंटिंग कर दी, और जो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड टैक्स सेविंग है उसे हमने अलग से कैलकुलेट करके और उसकी अलग पीवी निकाल ली, और उन दोनों को ऐड करते हैं तो भी वहीं पहुंचते हैं जहाँ पे हम यहाँ से पहुँचे। तो बेस केस एनपीवी पे हम यहाँ तक पहुँच गए, बेस केस एनपीवी तक आप भी पहुँचे, और उसके बाद फिर हम अब करेंगे डिस्कशन किसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स की। तो यहाँ तक सब पहुँच जाएं और सारी कैलकुलेशंस को चेक कर लें, रीचेक करें, और उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अब बेस केस एनपीवी के बाद पीवी ऑफ फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स। 3 एडजस्टमेंट्स हमें क्लियर नज़र आ रही हैं, एक के इशू कॉस्ट, दूसरा उस इशू कॉस्ट की टैक्स सेविंग, और तीसरा जो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ डेट, जो कि सबसे बड़ी एडजस्टमेंट होती है यहाँ पे। तो आइए यहाँ तक आप पहुँचे और अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब मैं ये हिस्सा सारा मिटा रहा हूँ। अब आ जाएं फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम, इसका पार्ट ए कर रहे हैं। अब हम आते हैं एपीवी कैलकुलेशन। एपीवी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास बेस केस एनपीवी आ गई, जो कि हमने अभी कैलकुलेट की 1544। अब हम कहेंगे पीवी ऑफ फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट्स क्या है हमारी, इशू कॉस्ट, फिर आएगी पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट, और फिर तीसरी आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ डेट। इशू कॉस्ट हमें बताया गया हमारी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, हमारी इनिशियल कॉस्ट है टोटल 1912। इस 1912 को आप डिवाइड बाय 2 करें तो वो डेट फाइनेंस हो गई, 956, ये हमारी डी हो गई। इसका 1.5% इंटू 0.015, तो ये बन गया 14 इशू कॉस्ट हो गई हमारी, अरेंजमेंट फ़ी जिसे आप कह रहे हैं इस 14.34 मिलियन यानी 14.3। अच्छा, यूं कि हम इसलिए इसको ग्रॉस नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफिकली ये बात कह दी है यहाँ पे कि द पेमेंट ऑफ एनी न्यू डेट अरेंजमेंट फी विल बी फंडेड फ्रॉम आईपी's एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व। सो वी विल नॉट ग्रॉस अप, हम उससे इतनी हम डेट बढ़ाएंगे नहीं, और बढ़ा के डेट्स को हम वहाँ से इशू कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि इशू कॉस्ट हम अपने नॉर्मल रिजर्व से पे कर रहे हैं। तो 14.3 मिलियन इशू कॉस्ट आ गई, यही इसकी पीवी भी होगी क्योंकि इसकी तो कोई डिस्काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर ये इशू कॉस्ट है तो इसकी टैक्स सेविंग यहाँ होगी, ये इशू कॉस्ट है 14.3 मिलियन, इस पे आ जाएं आप एट द रेट ऑफ 29%, क्या फिगर बन जाती है 14.34 इंटू 0.29, तो हमारी सेविंग हो गई 4.2 मिलियन। 4.2 को आप डिस्काउंट करें विथ 1.12 से, 12% से, क्योंकि केडी आपकी 12 है, प्री टैक्स केडी से डिस्काउंट करते हैं, तो ये बन गई फिगर 3.7 मिलियन। इसकी पीवी बन गई 3.7 मिलियन।
तो ये पीवी ऑफ टैक्स सेविंग आ गई ऑफ इशू कॉस्ट। तो ये बन गई फिगर पॉजिटिव 3.7। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ डेट। अब डेट है हमारे पास 956, इस पे इंटरेस्ट होगा 12%, और तो कितनी इंटरेस्ट की फिगर बन गई, 956 इंटू 0.12, ये बन गई 114.7। इस पे आप टैक्स सेविंग करें एट द रेट ऑफ 29%, क्या फिगर बन गई, ये बन गई 33.3 मिलियन। अब ये 33.3 मिलियन की टैक्स सेविंग होगी आपको फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ये आपको सेविंग होगी फॉर 25 ईयर्स। हम अज्यूम कर रहे हैं इतनी तो हमारी डेट की लाइफ होगी जो कि प्रोजेक्ट की लाइफ है। 25 ईयर लोन वैसे भी लिखा हुआ है, सजेस्ट 25 ईयर लोन, तो हमें अजम्पशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप 33.3 पे आए, 1 माइनस, अब यहाँ डिस्काउंट रेट क्या होगा, प्री टैक्स के डी हमें पता है 1.12 माइनस 25.12 करें, क्या फिगर बन गई मुझे बताएं, minus 25, 1 minus this rate, divide by 0.12 into 33.3 is 261 million approximately, इतना ये 260.9 यानी 261 मिलियन। तो ये 261 मिलियन की फिगर बन गई हमारे पास। 261 मिलियन पे यहाँ आ जाए हम, तो हमारी एपीवी क्या बन गई, इन सबको ऐड भी करें तो भी एपीवी वुड बी massively negative। तो 1544 minus 14.3 plus 3.7 plus 261, तो ये फिगर बन गई minus 1544 minus 14.3 plus 3.7 plus 261 is 1293.6 is 1293.6 million, 1.2 billion negative. The APV is significantly negative, which means the project is not viable with these numbers, with these assumptions. तो यहाँ तक आप पहुँचे APV की कैलकुलेशन पे। फिर हम आते हैं किस पे, MIRR पे। यहीं हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं APV के फ़ायदे क्या हैं एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल NPV एंड अदर टेक्निक्स, क्योंकि वो डिस्कशन का पार्ट है। APV टेक्निक की ब्यूटी जैसे कि हमें नज़र आ रही है और हमने डिस्कस भी की है कि हमें फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के इफ़ेक्ट्स को सेपरेटली ऑप्टिकली हमें दिखा देती है टेक्निक। हम अज्यूम करते हैं प्रोजेक्ट इज़ ऑल इक्विटी फाइनेंस, तो क्या होगा, और फिर जो फाइनेंसिंग मोड्स के जो डेट इंट्रोडक्शन के जो इम्पेक्ट्स होंगे वो हमें सेपरेटली नज़र आ जाते हैं। और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जैसे सब्सिडाइज डेट है, जैसे अगर हमारी ऐसी डेट है जैसे हम कहते हैं कि जी स्पेयर डेट कैपेसिटी है, उसके इम्पेक्ट को भी हम अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर भी कर लेते हैं और वो सामने नज़र भी आ जाते हैं। प्लस एपीवी का जो कि एनपीवी में ऐसे नॉर्मली नज़र नहीं आते। प्लस एनपीवी के कंपैरिजन में एक फ़ायदा ये है कि इवन इफ़ अ प्रोजेक्ट इज़ ऑल डेट फाइनेंस, 100% डेट फाइनेंस, हम एपीवी टेक्निक से बड़ी आराम से कैलकुलेशन कर लेते हैं। एनपीवी में हमें वहाँ पे मुश्किल होती है। तो एपीवी टेक्निक इज़ अ सुपीरियर टेक्निक। ये हमारी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को बेस केस पे पहले डिस्काउंट करती है, फिर उसकी फाइनेंसिंग इफ़ेक्ट्स को अप्रोप्रिएटली हमें दिखाती है। हम कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंसिंग मोड्स के डिफरेंट ऑप्शंस के इम्पैक्ट्स को। प्लस अगर एक प्रोजेक्ट ऑल डेट फाइनेंस्ड है तो भी उस प्रोजेक्ट की जो है वो हम कैलकुलेशन बड़ी आराम से यहाँ से कर सकते हैं। एनपीवी में उसके लिए हमें वर्क अराउंड करना पड़ता है, इक्विटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करके वैक निकालना मुश्किल होता है उस सिचुएशन में। फिर उसके बाद जो इसकी दूसरी इसकी ब्यूटी ये है कि इस तरह की चीज़ें जैसे स्पेयर डेट कैपेसिटी हो गई या जैसे सब्सिडाइज डेट वगैरह है, उसके इम्पैक्ट्स को भी आप बड़े आराम से यहाँ दिखा के क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो हम ये बातें जब हम रिपोर्ट पार्ट बी करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं।
यहाँ तक आप पहुँचे, मैं अब ये हिस्सा मिटा रहा हूँ और हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह किसको, MIRR, मॉडिफाइड IRR। मॉडिफाइड IRR एक ऐसा IRR है, IRR कैलकुलेटेड with reinvestment rate assumption similar to of NPV, that is reinvestment equal to required rate. अब व्हाट इज रिक्वायर्ड रेट? एक्चुअली जो रिक्वायर्ड रेट है वो तो है हमारा रिस्क एडजस्टेड वैक ओवरऑल प्रोजेक्ट से, है ना। यहाँ हमने रिस्क एडजस्टेड वैक नहीं निकाला, यहाँ हमने एपीवी कैलकुलेशन की हुई है, तो हमने केईयू से वर्किंग की है। तो व्हाट इज द री इन्वेस्टमेंट रेट? हम केईयू से भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि बेस केस एनपीवी हमने कैलकुलेट किया, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड रेट था बेस केस के लिए। अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट विल अर्न दैट, तो क्या होगा हमारा मॉडिफाइड IRR, हम वो भी निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि हम रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल लें, वो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट का बीटा एसेट है, प्रोजेक्ट का अपना डी रेशो मौजूद है 50-50, उसको यूज़ करके हम एक प्रोजेक्ट का रिस्क एडजस्टेड बीटा इक्विटी और रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल सकते हैं। उसके थ्रू भी हम MIRR निकाल सकते हैं। सजेस्टेड सॉल्यूशन में उसने आपकी ऐसी केईयू को एज अ रिक्वायर्ड रेट लेके उसको री इन्वेस्टमेंट रेट बना के और उसकी बेसिस पे MIRR निकाला है, वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने वर्किंग एपीवी की है, रिक्वायर्ड रेट ही हमारा जो है वो केईयू था, तो हमने अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेट और उसकी बेसिस पे हम वर्किंग करें, वो भी ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। रिस्क एडजस्टेड वैक से करें, वो भी ठीक है। किसी एक से करें और बाकी बात आप नोट में लिख लें, वो भी ठीक है। इतना मैं आपको दोनों के थ्रू वर्किंग करके यहाँ शो कर लेता हूँ। एग्जाम में यू कैन डू एनी वन, बोथ आर एक्सेप्टेबल। और अगर कोई ये नोट लिख दे तो चेरी ऑन द टॉप है कि हमने केईयू से किया है। हम रिस्क एडजस्टेड वैक कैलकुलेट करके उससे भी रिक्वायर्ड री इन्वेस्टमेंट रेट उसे बना के भी कर सकते हैं, और रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल के किसने वर्किंग की वो ये लिख भी सकता है कि जी हम चाहते तो केईयू से भी कर सकते थे, विच वॉज द ईजियर ऑप्शन। तो मैं दोनों से आपको वर्किंग करके अभी शो करता हूँ। यहाँ तक आप पहुँचे, केईयू तो हमारे पास वैसे ही कैलकुलेटेड है 18.6%। मैं रिस्क एडजस्टेड वैक निकालना चाहूँ तो भी निकालता हूँ। पहले मैं बल्कि मैं कैलकुलेट कर देता हूँ पहले रिस्क एडजस्टेड वैक, फिर हम MIRR की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कोई रिस्क एडजस्टेड वैक से करना चाहे तो क्या करेगा, ये हिस्सा अब मैं मिटाना शुरू करता हूँ क्योंकि बहरहाल अगर मुझसे पूछें तो कंपैरेटिवली टेक्निकली ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप रिस्क एडजस्टेड वैक से कैलकुलेशन करें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रिक्वायर्ड रेट प्रोजेक्ट से वो है। बेस केस एनपीवी में तो हम अज्यूम करते हैं फर्स्ट स्टेप में कि द प्रोजेक्ट इज़ ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। वी ऑल नो प्रोजेक्ट इज़ नॉट ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, इज 50% फाइनेंस्ड बाय इक्विटी एंड 50% वाया डेट। तो रिस्क एडजस्टेड वैक अगर हम निकालें तो हम ऐसे निकालेंगे, हम कहेंगे रिस्क एडजस्टेड, पहले हम निकालेंगे बीटा इक्विटी, बीटा एसेट मौजूद है हमारे पास 1.6, डी रेशो हमारे पास मौजूद है 50-50, टैक्स रेट आपके पास मौजूद है 29%। फार्मूला आपको याद है, अज्यूमिंग द कॉर्पोरेट डेट इज रिस्क फ्री, बीटा डेट 0। तो 1.6 बीटा इक्विटी इंटू 50 plus 51 minus 29%, you can find out what we call the beta equity. करें कैलकुलेट, ये आ गया 2.736। इस बीटा इक्विटी की बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट व्हाट वी कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड केई। रिस्क एडजस्टेड केई वुड बी 9 plus 15 minus 9 into 2.736। तो वो क्या फिगर बन जाएगी, रिस्क एडजस्टेड केई into 6 plus 9 is 25.42, राइट। तो ये आपके पास केई आ गई, जिसे आप केई जी कहते हैं।
ई और डी रेशो आपको पता है 50-50। के डी आपका प्री पोस्ट टैक्स निकाल लें आप, क्योंकि वैक के फार्मूला में के डी पोस्ट टैक्स जाता है 12 1 माइनस 29%। के डी पोस्ट टैक्स क्या आ गया आपका, ये 8.52%। तो अब इन फिगर्स की बेसिस पे बड़े आराम से आप रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल सकते हैं। आपका रिस्क एडजस्टेड वैक बड़े आराम से आ जाएगा, इज इक्वस टू के ई इंटू ई। के डी ऑफ कोर्स यहाँ पोस्ट टैक्स होता है, पोस्ट टैक्स इंटू डी डिवाइडेड बाई ई प्लस डी। तो आप करें 25.42% इंटू 50 प्लस 8.52% इंटू 50 डिवाइड बाई 50 प्लस 50। तो क्या आ गया आपके पास रिस्क एडजस्टेड वैक, जो कि आपका एक्चुअल रिक्वायर्ड रेट होगा। इट कम्स आउट टू बी अराउंड 17%। 8.52 इंटू 50 प्लस 25.42 इंटू 50। तो 16.97% यानी 17%। तो ये भी आपका रिक्वायर्ड रेट बन सकता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर रिक्वायर्ड रेट है एज़ कम्पेयर टू दिस KEU 18.6। तो हम इसके थ्रू भी री इन्वेस्टमेंट करके देख लेंगे, इसके थ्रू भी कर लेंगे और MIRR दोनों से निकाल लेंगे। तो यूँ हम रिस्क एडजस्टेड वैक तक भी यहाँ पहुँच सकते थे। आप लोग पहुँचे यहाँ तक, फिर अब मैं डिपेंड करता हूँ MIRR की कैलकुलेशन। यहाँ तक पहुँच जाए, मैं ये हिस्सा सारा मिटाऊंगा अभी। मॉडिफाइड IRR। तो मॉडिफाइड IRR की कैलकुलेशन हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी री इन्वेस्टमेंट रेट हम ले लें या 18.6 या हम ले लें 17%। अच्छा जी, हम कर रहे हैं मॉडिफाइड IRR। हमने अभी ये डिस्कशन की, मॉडिफाइड IRR के लिए हमारा जो री इन्वेस्टमेंट रेट है विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड रेट, वो हम KEU भी ले सकते हैं। 18.6% और वो हम रिस्क एडजस्टेड वैक भी ले सकते हैं विच इज़ 17%। ठीक हो गया जी। अब अगर हम 18.6 लेते हैं, हमारे पास जो कैश फ्लोज थे वो यूँ थे। नेट कैश फ्लोज जो प्रोजेक्ट के थे ईयर 1 to 10 और ईयर 11 to 15, राइट। नेट कैश फ्लोज आपके पास बने हुए होंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1912 था और यहाँ क्या था 78.3 और यहाँ था 26.1, राइट। पर एनम। तो हम क्या करते हैं MIRR में, हम एक कैश फ्लो ये लेते हैं, ये P बन जाता है। बाकी सारे कैश फ्लोज को हम 25 ये यानी बिल्कुल एंड में ले जाते हैं। तो हमने इसको भी एंड पे ले जाना है, इसको भी एंड पे ले जाना है, S उसे डिक्लेयर करेंगे। तो पहले हम इनकी यानी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे सारे कैश फ्लोज की। तो हम ईयर 1 to ईयर 10 के कैश फ्लोज को देखते हैं पहले। इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 78.3। रिमेंबर द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू R 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय I। जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? वी रीच एट दी फ्यूचर वैल्यू एज एट दी लास्ट कैश फ्लो ऑफ द सीरीज।
जो भी सीरीज़ का लास्ट कैश फ्लो है हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ ईयर 1 to 10 है तो फ्यूचर वैल्यू आएगी ईयर 10 के पास, राइट। तो अगर हम इसकी कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू निकालें तो आएगी 78.3, 1 plus 18.6%, पावर नंबर ऑफ टाइम 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 18.6%, राइट। तो 1.186 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.186 इंटू 78.3, ये फिगर बन गई 1896.9, ये फिगर बन गई 1896.9 एज एट ईयर 10 एंड। इसको हमें अगर आगे ले जाना है तो इसकी फ्यूचर वैल्यू एट ईयर 25 एंड क्या बनेगी, वो बनेगी 1896.9 1.186 पावर 15 साल हम इसे और आगे ले जाएं तो ये बन जाएगी 24,509। ये एक आ गई फ्यूचर वैल्यू। फिर हमने इसकी भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू ईयर 11 तो ईयर 25 के जो कैश फ्लोज है इनकी फ्यूचर वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये डायरेक्ट ईयर 25 के एंड पे हमारे पास वैसे ही आ जाएगी 26.1। नंबर ऑफ टाइम्स दिस कैश फ्लो रिपीट्स इटसेल्फ इज 15 डिवाइड बाय 0.186। तो मुझे बताएं ये हर साल का कैश फ्लो, ये एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं 1.186 पे एक्स बाय 15 minus 1 divide by 0.186 into 26.1, this becomes 1672.7, 1672.7। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल फ्यूचर वैल्यू यानी एस की फिगर आ जाएगी। पी हमारे पास 1912 मौजूद है प्लस 24,509, दिस बिकम्स 26,182। थोड़ा सा आपके पास ये डिफरेंट आ सकती है डिपेंडिंग, आपने 2 डिजिट्स तक ले लिए हैं 26, 190, 195 इस तरह की फिगर भी आ सकती है। तो 182 सॉरी मेरे पास जो आई है 26,182, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें टू 1673 तो ये बन जाएगी 26,182। अब दिस बिकम्स एस, दिस बिकम्स पी। जब हम एन्युटी के इस फॉर्मूले के बाद फ्यूचर वैल्यू निकाल चुके तो अब हमने निकालना है MIRR। अब हमने सारे कैश फ्लोज को 2 कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया, एक प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे P जो कि इन्वेस्टमेंट की है और एक सारे कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू आ गई। तो सारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को 2 कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया, एक P ये एक S। इन दोनों को अब हम यूज करें, S इज इक्वल टू P1 प्लस आई पावर n, यानी यहाँ n बन जाएगी 25, 26, 182, 1912, 1 प्लस आई पावर 25 करें और यहाँ से जब आप आई निकालेंगे तो वो बन जाएगी आपकी मॉडिफाइड IRR की फिगर। 26,182 इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1912 से और फिर इस पे एक्सपायर करते हैं 1 डिवाइड बाई 25 इनवर्स। तो ये बन जाएगा 1.11 माइनस 1 इज़ 11% एग्जैक्टली। ये बन जाएगा आपका MIRR, मॉडिफाइड IRR। Assuming the project cash flows are reinvested at a rate equal to KEU, which is the required rate जो कि बेस केस NPV के लिए था,
अगर हम ये अज्यूम करते हैं तो हमारा मॉडिफाइड IRR आ जाता है 11%। देखिए सब लोग इस पे पहुँचे, यहाँ तक पहुँचते हैं तो बात समझ में आती है। सब यहाँ तक पहुँचे, फिर मैं आता हूँ रिस्क एडजस्टेड वैक पे। सब पहुँच जाए यहाँ तक, फिर मैं आता हूँ कि अगर हम री इन्वेस्टमेंट रेट ले लें इक्वल टू दी रिस्क एडजस्टेड वैक तो फिर क्या होगा। अब आइए अगर हम ले लें रिस्क एडजस्टेड वैक को एज रिक्वायर्ड रेट, अब मैं ये मिटा रहा हूँ, वर्किंग तकरीबन ऐसी ही होगी, सिर्फ अब रिक्वायर्ड रेट होगा हमारा रिस्क एडजस्टेड वैक। एक छोटा सा और फ़र्क आएगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा आप देखें, जब हम रिस्क एडजस्टेड वैक को लेंगे एज अ रिक्वायर्ड रेट तो फिर हमें कैश फ्लोज भी एनपीवी के हिसाब से लेने पड़ेंगे। एनपीवी और एपीवी में तो क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बनाते हैं तो सारी फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स उसके बाद आती हैं, जो कि जिसमें आपकी इशू कॉस्ट ऑफ डेट और उसकी टैक्स सेविंग भी। यहाँ जब हमने रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल लिया, इसमें जो केडी की टैक्स सेविंग वगैरह का इम्पैक्ट है, वो डिस्काउंट रेट कम हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन जब आप याद करें, जब हम नॉर्मल एनपीवी निकालते थे और इशू कॉस्ट की बात करते थे तो हम कहते थे कि इशू कॉस्ट को अकाउंट फॉर करने के दो तरीके हैं कि इशू कॉस्ट को भी वैक में एडजस्ट कर लिया जाए, डिस्काउंट रेट को, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड वैक का कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, या दूसरा ये कि उन्हें कैश फ्लोज में डाल दें। तो अगर हम एनपीवी प्रोसेस कर रहे होते तो एनपीवी प्रोसेस करते हुए हम क्या करते हैं, हम कैश फ्लो सारे ऐसे ही बनाते, बस उसमें हम ऐड कर देते इशू कॉस्ट और उसकी टैक्स सेविंग, है ना। इशू कॉस्ट कर दो, नेट ऑफ टैक्स सेविंग मैं लिख देता हूँ, उसकी हम टैक्स सेविंग को यहाँ अगर अकाउंट फॉर कर दें, जो कि इशू कॉस्ट और उसकी टैक्स सेविंग आ रही है, तो वो है तकरीबन 10.6 बनता है। हमारी इशू कॉस्ट आ रही थी 14.3 माइनस 3.7, जो कि हमारी टैक्स सेविंग थी उसकी, तो 10.6। ये डाल दें तो भी ठीक है, ना डालें इग्नोर कर दें तो भी ठीक है। ये मैं थोड़ी सी और यानी आप समझें कि इसमें और एक्यूरेसी ला रहा हूँ। तो हमारी इनिशियल कॉस्ट, अगर हम एनपीवी के प्रोसेस से चलते तो हम कैश फ्लोज बनाते हुए इन्हें भी अकाउंट फॉर करते और हमारी इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाती, वो 1912 प्लस 10.6, तो ये बन जाती 1922.6। टैक्स सेविंग की भी मैंने प्रेजेंट वैल्यू डाल दी है, उसका इम्पैक्ट माइनर है ग्रॉस डालने के बजाय, क्योंकि वो सेविंग शायद यहाँ होती, लेकिन बहरहाल उसको यहीं डाल दिया। तो ये बन गया 1922.6, ये आती है हमारी इफेक्टिवली पी की फिगर। बाकी ये फ्यूचर, हम सारे कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे यहाँ और उसको एस कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किया जब हम अभी के यू को एज अ रिक्वायर्ड रेट लेके चल रहे थे। अब हमारा रिक्वायर्ड रेट हम री इन्वेस्ट कराएंगे कैश फ्लोज को एट 17%, तो बिल्कुल वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हम कहेंगे अच्छा फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ईयर 1 to 10 के कैश फ्लोज को लेके चलते हैं, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू यानी एस की फिगर अगर हम ना लें तो 78.3, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1.17 कर दिया, 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.17, तो ये फिगर बन जाएगी एज एट ईयर 10 एंड। $1,753.4, ये कहाँ है, ये है एज एट ईयर 10 एंड। हमने इसको ले जाना है फ्यूचर वैल्यू एट ईयर 25 एंड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1.17 पावर 15। इसको 15 साल आगे ले जाएं तो ये फिगर बन गई हमारी 18,478.4। फिर हम ले आए फ्यूचर वैल्यू ईयर 11 to 15 कैश फ्लोज,
उन कैश फ्लोज की अगर हम देखें तो हम 26.1 1.17 पावर 15 साल ये हो रहे हैं, डिवाइड बाय 0.17। तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगी हमारे पास ईयर 25 के एंड पे, क्योंकि लास्ट कैश फ्लो ऑफ द सीरीज़ जहाँ होगा ये हमें वहाँ आएगी फिगर। ये फिगर बन गई 1462.64 आ रही है, 21.17 पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.17 इंटू 26.1 कर दी मैंने, तो ये बन गई 1464.5। इन दोनों को हम सम कर दें तो ये फिगर एस बन जाएगी हमारी टोटल 18478.4 19943 राउंड ऑफ करके 19943। थोड़ी सी डिफरेंट आपके पास आ सकती है, आपके पास 19800 समथिंग भी आ सकती है, 20 पे भी आ सकती है। थोड़ी सी फिगर्स आपकी ये डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि मैंने फिगर्स क्या लिए यहाँ राउंड ऑफ करके ले लिए। अच्छा जी, तो अब हम मॉडिफाइड IRR निकालेंगे, तो हम कहेंगे S इज़ इक्वल्स टू P 1 प्लस आई पावर n। S की फिगर ये आ गई 19943, P हमने वहाँ से उठाया 19226, 1 प्लस आई पावर 25 करें तो I यानी मॉडिफाइड IRR आपके पास क्या आ गया 1922.6। तो ये फिगर बन गई 9.8%। मॉडिफाइड IRR टर्न्स आउट टू बी 9.8। ऑफ कोर्स कम आएगा व्हेन यू आर री इन्वेस्टिंग एट अ कंपैरेटिवली लोअर रेट, तो ऑटोमेटिकली आपके पास MIRR भी कम आएगा। मॉडिफाइड IRR इफ यू कंटिन्यू टू री इन्वेस्ट एट 17%, even then you are going to get an actual return of only 9.8%। तो हम MIRR की बेसिस पे भी देखें, ये देखें या पहले 11 निकाला is less than the required rate। in any case MIRR भी हमें यही कह रहा है कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं है। MIRR को भी कंपेयर किससे करेंगे, रिक्वायर्ड रेट से करेंगे। तो MIRR को अगर हम इससे कंपेयर करें पहले केस में तो इससे बहुत कम है 11%, सेकंड केस में इससे करेंगे तो भी बहुत कम है। तो MIRR भी यही सजेस्ट कर रहा है मॉडिफाइड IRR कि प्रोजेक्ट इज़ नॉट फाइनेंशियली वायबल एट ऑल, प्रोजेक्ट इज़ मैसिवली नेगेटिव। राइट। तो अब आइए यहाँ तक कैलकुलेशन वाइज आप पहुँच जाएं। कैलकुलेशंस कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, 16 मार्क्स के हिसाब से मैं समझता हूँ ये कैलकुलेशंस आर आई थिंक दिस इज़ एन एडिक्वेटली मार्क्ड क्वेश्चन। इसके मार्क्स बिल्कुल ठीक हैं इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड। कैश फ्लोज बहुत ही सिंपल हैं। हाँ, MIRR में थोड़ा बहुत आपको ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट डिस्काउंटिंग करते हुए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं, अदरवाइज कैश फ्लोज आर वेरी वेरी सिंपल। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच जाएं तो हम ब्रीफली पार्ट बी भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये अब APV की पॉजिटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर हम दोनों के 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली पहले भी किया है कैलकुलेशन के दौरान, और फिर हम उसका जो मेजर पार्ट है दूसरा भी है कि रिकमेंडेशन एज टू वेदर IP शुड प्रोसीड विद द पायलट फॉर इट्स न्यू सोलर प्लांट। तो इस पे आप पहले तो ये कमेंट कर सकते हैं कि जो फीजिबिलिटी बता रही है वो तो ये है कि दिस इज़ मैसिवली नेगेटिव। तो हमें रीवर्क करना चाहिए, पहले तो अपने नंबर्स को रीअसेस करें कि क्या जो हम प्रोडक्शन का फोरकास्ट है क्या यही है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम है। 116 मिलियन अगर आप 25 साल तक करें और आप 20 मिलियन तक की 1.9 बिलियन की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेवेन्यू जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि, और मे बी अगर हम देखें तो एक दिन में हम कह रहे हैं सिर्फ 1000 किलोवाट हम जनरेट करेंगे, 1 मेगावाट में वैसे ही 1000 किलोवाट होते हैं, तो आप यानी दिन में ये किलोवाट आवर की बेसिस पे है, पर डे की इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है वो इतनी जनरेशन जो आपने रखी है वो बहुत कंजर्वेटिव तो नहीं है। खैर बहरहाल साल के कुछ महीनों में ये प्लांट इतना इफेक्टिव होता भी नहीं है, जो समर मंथ्स में उसमें होता है
इन एनी केस आपको थोड़ी सी अपने नंबर्स को रिवर्क करें, अपनी कॉस्ट को रिवर्क करें टू फिगर आउट इफ इट इज़ फाइनेंशियली फ्रॉम वायबिलिटी परस्पेक्टिव कुछ बेटर रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। होता है ना, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट नेगेटिव होता है तो आप कहते हैं चलें ठीक है, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव यू कैन इनकर दैट कॉस्ट टू लर्न एंड देन दिस विल हेल्प यू इन सब्सिक्वेंट जो है इम्प्लीमेंटेशंस। तो पहले तो आप ये देखें कि क्या जो है ये नंबर्स जो है उनको रिवर्क करें, पहला बात तो ये है। और अगर नंबर्स यही हैं और ये मैसिवली नेगेटिव है तो फिर आपको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से तो नहीं करना चाहिए। स्ट्रैटेजिकली अगर आपको ये काम करना है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप 100 एकड़ की साइट पे जाएं, फिर आप 1 मेगावाट 2 मेगावाट 3 मेगावाट का करें, ताकि आपकी डिज़ाइन की टेस्टिंग लर्निंग उससे हो और शायद उससे आपकी आउटपुट वगैरह अगर आप इम्प्रूव करके देखना चाहें प्रैक्टिकली करके डिज़ाइन को टेस्ट करके, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर in coming up with a better design and to be in the market, because renewables are the future of electric generation। तो फिर आप ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उसके लिए आप छोटा पायलट कर लें एंड देन रीअसेस योर टेक्निकल एबिलिटी। उसके थ्रू आपकी टेक्निकल वो भी असेस हो जाएगी, डिज़ाइन भी हो जाएगा, वो भी असेस हो जाएगा, और साथ ही फिर आपको हेल्प होगी इन फ्यूचर असेसिंग द फ्यूचर वायबिलिटीज़ एज वेल। तो ये बात आप इस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर आपने सिर्फ इसे इम्प्लीमेंट करना है और आपने ख़ुद ओन नहीं करना, तो वो रिस्क तो कस्टमर के पास चला जाएगा। यू विल ओनली बी बेसिकली डिज़ाइन करके आप ब्रोकर करके इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आपका डिज़ाइन इतना एफिशिएंट होना चाहिए और इतनी जनरेशन उसके अंदर आनी चाहिए कि आप जो है इट बिकम्स वायबल फॉर द कस्टमर एज वेल। अच्छा, उसके बाद अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मज़ीद बातें बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते जो है, और मेरा ख्याल ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इतनी बात आपने कर दी कि जी पहली बात कि ये फाइनेंशियली इस वक्त इन नंबर्स के साथ तो वायबल बिल्कुल भी नहीं है, सिग्निफिकेंटली नेगेटिव है। तो यू रीअसेस योर नंबर्स बोथ फ्रॉम कॉस्ट एंड रेवेन्यू परस्पेक्टिव। फिर आप ये लिखें कि उसके बावजूद भी अगर आपने स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, ताकि फ्यूचर रेडी होने के लिए अगर ये प्रोजेक्ट करना है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप छोटा पायलट करें रादर देन कि आप 20 मेगावाट का पायलट करें। फिर आइए आप APV और MIRR। तो APV टेक्निक के अपने एडवांटेजेस हैं जो कि हमने अभी डिस्कस भी किए। इट्स अ सुपीरियर टेक्निक, इट हेल्प्स यू असेस द प्रोजेक्ट वायबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस व्हेन अ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली डेट फाइनेंस्ड। इट आल्सो गिव्स यू अ बेटर ऑप्टिक इन टर्म्स ऑफ डिटैचिंग और गिविंग यू द ब्रेकअप ऑफ द वर्किंग के बेस केस NPV क्या है और फाइनेंसिंग के जो मोड्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ऑन द अदर हैंड इट्स कॉम्प्लेक्स एज वेल, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इट अज्यूम विद इन इट देयर इज़ एन अजम्पशन दैट कि MM थ्योरी की जो अजम्पशंस हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं APV कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि APV इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ MM थ्योरी एंड दोज अजम्पशंस में नॉट होल्ड ट्रू एट टाइम्स। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस वाली साइड हो गई। MIRR पे आ जाएं तो MIRR इज़ बेटर देन IRR इन दैट सेंस दैट द री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन दैट इज़ बिल्ट इनटू इट, जो आप करते हैं कि यू विल ट्राई टू अर्न at least your required return, is better than the reinvestment rate assumption that is built into the normal IRR technique. MIRR is easier to explain in terms of comparing MIRR versus the required rate। आप कह सकते हैं ये मुझे प्रोजेक्ट एक्चुअली दे रहा है, ये मुझे प्रोजेक्ट मेरी रिक्वायरमेंट है, तो किसी को एक्सप्लेन करने के लिए आसान है। तीसरा एडवांटेज ये है कि जी IRR में तो मल्टीपल IRR प्रॉब्लम आता है, MIRR में मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं आ सकता। IRR ये सजेस्टेड सॉल्यूशन में लिखा है, वो गलत लिखा है कि जी MIRR का डिसएडवांटेज ये है कि मल्टीपल MIRR होते हैं। मल्टीपल IRRs हो सकते हैं, मल्टीपल MIRR नहीं होगा, क्योंकि MIRR में आप री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन एक ले रहे हैं, वो इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट, और एक ही MIRR निकलता है। ये इसका एडवांटेज है। जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जी इस टेक्निक में आप एक कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट रेट एक जो अजम्पशन ले रहे हैं वो भी हो सकता है कि ट्रू ना हो, है ना। एट टाइम्स इट इज़ नॉट ईजी टू अर्न दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि इस केस में देख लें कि आप प्रोजेक्ट तो आपका फीजिबल नहीं है और आप फिर भी अज्यूम कर रहे हैं कि जो कैश फ्लोज आएंगे यू विल बी एबल टू फ्लो बैक एट योर रिक्वायर्ड रेट। तो ये इसका एक चैलेंज है बहरहाल। और MIRR आपको ये क्वांटिफाई करके नहीं देता कि मैग्नीट्यूड ऑफ बेनिफिट या लॉस क्या है। जैसे APV में मुझे पता चल गया ना कि प्रोजेक्ट की APV जो है वो कितनी अमाउंट आई थी, वो जो APV की हमने कैलकुलेशन की, मेरा ख्याल है कि बेस केस आई थी 1.5 बिलियन और हमारे पास
इसकी APV भी आई थी कोई 1.3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द बेनिफिट और द लॉस वो क्वांटिफाई होता है APV या NPV टेक्निक में, जो कि यहाँ नहीं होता। यहाँ आपको सिर्फ ये पता चल गया ये आपका एक्चुअल रिटर्न है वर्सेस द रिक्वायर्ड रेट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस वो क्वांटिफाई होके नहीं आता। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं 1-2, ठीक है। और आई थिंक फ्रॉम 6 मार्क्स परस्पेक्टिव 1-2 एडवांटेज 1-2 डिसएडवांटेज दोनों के आपने लिख दिए, और आपने प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के परस्पेक्टिव से डिस्कशन कर ली कि वेदर यू शुड गो और नॉट। तो 6 मार्क्स के लिए दिस वुड बी इनफ डिस्कशन। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एंड उसके बाद अब हम करते हैं, यहाँ तक आप पहुँच जाएं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। थैंक यू।